Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. In the previous couple of lectures, we have so far discussed the four and maximum categories of economic agents. Starting with the households, they are also known as consumers and also the largest and significant part of the economic society. The second one is the producers. They are also known as the suppliers. They create and produce and cultivate goods and services, and they provide it to the rest of the society. The third one is the traders, and symbolically it was written as capital NX, and their objective is to connect the national economy with the rest of the world and to make the local economy as a global village. The fourth and the significant part of the society was the government. It is also known as invisible hands that you can see on your screen. The government do not interfere in the economic affairs of household producers and traders directly, but indirectly it controls the whole of the economy. So this is the thing that we have discussed in the previous lectures. So today in lecture 4 we will be discussing the rest of the two parts of our definition of economy that you can see on your screen is structural sectors and fundamental markets. So starting with the structural sectors that we have already discussed in our lectures, that the first one is the agribusiness. It is also known as the primary sector of the society. It includes four major things. The first one is the cash crops. It includes the production and cultivation of major and minor cash crops like wheat, rice, cotton, sugarcane, potatoes, tomatoes, onions, chilies, etc. The second one is the livestock. It includes sericulture, beekeeping and cattle keeping, etc. The third one is the fisheries. It includes the fisheries and the aquaculture, and the fourth one is the forestry. The second one is the industry or secondary sector. It includes the manufacturing and trading concerns. Manufacturing concerns that I have talked with you earlier, that it includes that business in which the product is produced and through a process of factory overhead cost it is created into a final product, and then the end user can consume it. Whereas trading concerns, it is not related with the production process, however they purchase one product from a low price market and sell it to the high price market, so they are regarded as the trading sector. The tertiary sector is the services sector, and we have already discussed in greater detail that it includes education, healthcare, courts, financial sector and filmmaking. So these are the core three sectors of any economic society. So here comes the last part of the definition of economy, that are fundamental markets. So there are actually three fundamental markets. The first one is the market of goods and services. It is also known as the tangible and intangible market or physical market. The second one is the labor market. It is also known as the market of factors of production. And the third one is a broad market, that is the money market. So before proceeding to the types of market, we will to understand the definition of market. So market is a place where goods and services are exchanged and prices are settled. तो बेसिकली इस डेफिनेशन के दो पॉइंट हैं. सबसे पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो हैं यानी अशिया और ख़िदमात का एक्सचेंज हो, और दूसरी इसका पार्ट है कि जहाँ पे प्राइसेस की सेटलमेंट हो, यानी एक पार्टी जो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी टेंजिबल या इनटेंजिबल प्रोडक्ट को ख़रीद रही है वो प्राइस पे करेगी, और जो टेंजिबल और इनटेंजिबल आइटम को सेल कर रही है वो प्राइस चार्ज करेगी या रिसीव करेगी. So one party has to pay, the other party has to receive. So there is always a repercussion effect.
someone will get benefit and someone will get worse off. अब इस डेफिनेशन के मुताबिक आपको नोट में भी नज़र आ रहा होगा कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मार्केट को फिजिकल होना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हैं वो किसी फिजिकल मार्केट से जाकर परचेज करते हैं। वहाँ पे सप्लायर मौजूद होते हैं, वहाँ पे बायर जाते हैं, सप्लायर और बायर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, एक गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है, जो है वो उसके अगेंस्ट फाइनेंस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी एक पार्टी पैसा पे करती है, दूसरा रिसीव करती है, ये इस तरह से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट फिजिकली होगी, मार्केट इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, यानी आप इंटरनेट के ऊपर भी बैठ के आप इंटरनेशनली गुड्स एंड सर्विसेज को अमेज़ॉन से, ईबे से या ट्रेड से आप या ग्लोबलाइजेशन से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। यही ग्लोबलाइजेशन जो मैंने पहले भी तज़किरा किया। सो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड नेटवर्क ऑफ इंटरबैंक्स, ब्रोकर्स, डीलर्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये डेफिनेशन आप जहन में रखिएगा कि ये फिजिकल भी होगी और ये इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड भी हो सकती है। So let's start the types of market. The first market is the market of goods and services. It includes 2 points. The first one is the demand for goods and services and the second one is the supply of goods and services. Demand for goods and services में एक पार्टी बायर या कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड, जो मैंने इकोनॉमिक एजेंट्स में तज़किरा किया था, वो डिमांड साइड है सोसाइटी की, उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करना है। और इकोनॉमिक एजेंट में मैंने दूसरा इकोनॉमिक एजेंट आपको प्रोड्यूसर्स या इन्वेस्टर्स बताया था, वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। यानी वो दो इकोनॉमिक एजेंट उन 3 सेक्टर से रिलेट करते हुए, यानी हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विसेज से रिलेट करते हुए, जब भी वो कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसके अगेंस्ट मनी की ट्रांजैक्शंस होगी, यानी पैसे का लेन देन होगा, यानी प्राइसेस की सेटलमेंट होगी। तो इसलिए हम इसे मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। ये सबसे बुनियादी और सबसे बेसिक मार्केट कहलाई जाती है। द सेकंड वन इज़ द मार्केट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसे रिसोर्सेज मार्केट भी कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, या लेबर मार्केट भी कहते हैं। लेबर मार्केट को भी हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि जनरली तो इकानमी में हम 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का तज़किरा करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप और ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली तो ये 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन इसके अलावा प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि अदर फैक्टर्स क्या होंगे, क्योंकि हर बिज़नेस का रॉ मटेरियल, हर बिज़नेस की ओवरहेड कास्ट, फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट, ये डिफरेंट होंगी। ठीक, तो जनरली हम इनको इस तरह से कैटेगराइज करते हैं, लेकिन इनमें भी 2 सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। द वन इज़ लेबर एंड द अदर वन इज़ कैपिटल। ये सबसे ज़्यादा इनकी परसेंटेज है। ये भी एक मार्केट है, इसमें भी लैंड सप्लाई करने वाली पार्टी अवेलेबल होगी, लैंड परचेज करने वाली पार्टी अवेलेबल होगी, जिसे हम रियल एस्टेट का बिज़नेस कहते हैं। इसी तरह से कैपिटल की अगर आप बात करें, फाइनेंस की बात करें, मनी की बात करें, लोन की बात करें, क्रेडिट की बात करें, तो वहाँ पे भी एक बायर मौजूद है, जिसे हम यहाँ पे बिजनेसमैन कह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं, ऑर्गेनाइज़र कह रहे हैं, और एक लोन को या कैपिटल को फाइनेंस करने वाला होगा, जिसे हमने शुरू में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, कमर्शियल बैंक्स, ये सारी की सारी जो है वो यहाँ पे फॉल करती है। यानी डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे भी मौजूद है। जहाँ पे मार्केट आएगी डिमांड एंड सप्लाई भी होगी और प्राइसेस की सेटलमेंट भी होगी। इसी तरह से लेबर है, लेबर सप्लायर भी मौजूद हैं, जिन्हें हम हाउस होल्ड कहते हैं, जो इकानमी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट हैं। लेबर को बाई कौन करने वाले लोग होंगे, अगेन वो बायर्स होंगे। और इसी तरह से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप, द नॉलेज ऑफ हाउ टू रन ए स्पेसिफिक बिजनेस। ठीक, चाहे एग्रीकल्चर है तो उसको कैसे डील करना है, किस टाइम पीरियड में कौन सी कैश क्रॉप मेजर या माइनर आपने कल्टीवेट करनी है, किस सीज़न में करनी है, कितने रॉ मटेरियल इन्वेस्ट करना है, कितनी लेबर उसके ऊपर जो है वो एम्प्लॉय करनी है। तो ये सारी की सारी डिसीजन मेकिंग जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए होगी।
और ऑब्वियसली लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन के बायर भी हैं, सप्लायर भी हैं, पहली कंडीशन मार्केट की। और दूसरी कंडीशन के प्राइसेस की सेटलमेंट भी होगी, यानी लैंड में जब लैंड एक्सचेंज होगी दो पार्टीज़ के दरमियान, यानी बायर और सप्लायर्स के दरमियान, तो उसमें जो प्राइस की सेटलमेंट होगी उसे हम रेंट कहेंगे या प्राइस ऑफ द लैंड कहेंगे। जो लेबर एक्सचेंज होगी बायर और सप्लायर के दरमियान, यानी हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के दरमियान, उनमें जो प्राइसेस की सेटलमेंट होगी उसे नॉमिनल वेज रेट कहेंगे। कैपिटल की जो सेटलमेंट होगी उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होगा बिटवीन बाइंग एंड सप्लाइंग पार्टीज़, और ऑर्गेनाइजेशन की में जो प्राइस की सेटलमेंट होगी उसे हम प्रॉफिट्स कहेंगे। So in all market you have to remember this once and for all, that in every market there will be exchange of something, which is the first condition, and there will be settlement of prices, settlement of some monetary aspect, which is the second condition. So the third is the money market. Actually there is no hardcore definition of money market. जनरली तो हम यही कहते हैं कि जिसमें पैसे का लेन देन होता है उसे हम मनी मार्केट कहते हैं, लेकिन इसकी फर्दर हमारे पास तीन टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फाइनेंशियल मार्केट, द सेकंड वन इज़ द कैपिटल मार्केट, एंड द थर्ड वन इज़ द फॉरेक्स मार्केट. इट इज़ एन एक्रोनिम which means foreign exchange. FOR for foreign and EX for exchange, foreign exchange market. So starting with the financial market, you can see the definition on your screen, that financial market is the market that includes the short term dealing of all financial transactions. यानी एक ऐसी मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म डीलिंग हो रही है फाइनेंस की, कैपिटल की, मनी की, करेंसीज की. मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है कि सेंट्रल बैंक के जो अदर डिपॉजिट्स हैं विद इन 1 ईयर जो उनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में. मैंने तज़किरा भी किया था शुरू के लेक्चर्स में. इसी तरह से कमर्शियल बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स, DD. इसका मतलब ये कि वो पैसा जो आपकी सैलरीज आपके बैंक अकाउंट में आती हैं या जो आपने कैश अपने बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट के ज़रिए आप मेंटेन करते हैं, वो कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट्स, वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी. इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, इसमें जो पैसा आप हर माह या हर 6 माह बाद या हर 1 साल के बाद आप किसी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में आप एज ए प्रीमियम आप पे करते हैं, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है. और इसी तरह से बॉन्ड्स मार्केट. तो जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस की डीलिंग होगी, रुपए पैसे की जहाँ पे लेन देन होगा, उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहेंगे. द सेकंड वन इज़ द कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट इज़ द मार्केट दैट डील्स विद द लॉन्ग टर्म डीलिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. यानी वो फाइनेंस की डीलिंग ही रही है लेकिन ओवर द ईयर्स हो रही है. अब इसको कुछ बुक्स कहती हैं ग्रेटर देन 1 ईयर और कुछ बुक्स कहती हैं कि 3 और मोर देन 3 ईयर्स जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैपिटल मार्केट में कहलाती हैं. तो कैपिटल मार्केट में एग्जांपल्स के तौर पे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, कमर्शियल बैंक्स टाइम डिपॉजिट्स, इसे फॉरेन FD भी कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स. ये वो पैसा जो आप ओवर द ईयर्स बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करते हैं. इसके साथ साथ नेशनल सेविंग सेंटर्स, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म एसेट्स की डीलिंग कर रहे होते हैं. इस तरह से आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने इन्फेंट किड्स के लिए 18 ईयर्स की एक पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं कि वो उनके अगेंस्ट नेशनल सेविंग्स सेंटर्स में वो डिपॉजिट करवाते हैं. और 18 ईयर्स नॉर्मली आपने देखा होगा कि उसकी मेच्योरिटी टाइम पीरियड होती है. तो ये कैपिटल मार्केट की एग्जांपल्स हैं. ट्रेजरी बिल्स, कंपनीज डिबेंचर्स एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX. तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है. अगेन यहाँ पे मनी और फाइनेंस की डीलिंग है लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट्स की डीलिंग है. क्विकली हम मूव करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर, विच इज़ द थर्ड एंड लास्ट सब टाइप ऑफ मनी मार्केट. And here comes the definition that foreign exchange market is a market in which participants can buy, sell, exchange and speculate on currencies. यानी अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो करेंसीज के अंदर हो रही है. यानी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रियल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी में नहीं हो रही, वो फिजिकल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी में नहीं हो रही, वो फिजिकल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी में नहीं हो रही. यानी
मिसाल के तौर पे ये इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रीज बना के नहीं हो रही, एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करके उसमें कल्टीवेशन करके नहीं हो रही, ये मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर नहीं हो रही, ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हो रही हैं, जिसमें आप सिर्फ करेंसीज को ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, या उसकी प्राइस को फोरकास्ट करते हुए आप उस पर स्पेकुलेट कर रहे हैं। स्पेकुलेशन कहते हैं आप पैसे को फिजिकल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि मॉनेटरी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन ऑन करेंसीज। अब स्पेकुलेशन ऑन करेंसीज में अगेन मार्केट जब आएगी तो उसमें बायर्स भी होंगे, उसमें सप्लायर्स भी होंगे और उसमें प्राइसेस की सेटलमेंट भी होंगी। तो याद रखिएगा बायर और सप्लायर आपको एग्जाम्पल के तौर पे नज़र आ रहे हैं कि इंटरबैंक्स, यानी इसमें हर तरह के बैंक्स आ जाएंगे, कमर्शियल कंपनीज, सेंट्रल बैंक्स विच इज़ लाइक द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स एंड डीलर्स। तो ये सारे लोग जो हैं वो इस बिजनेस के साथ, इस फाइनेंशियल सेक्टर के साथ रिलेटेड हैं, और बायर भी हैं, सप्लायर भी हैं। बायर को हम इन्वेस्टर्स कह देते हैं, सप्लायर को हम ये इंटरबैंक कमर्शियल कंपनीज, ब्रोकर्स एंड डीलर्स कह रहे हैं। और प्राइसेस की सेटलमेंट जो मार्केट की डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पे है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जनरली आप इसका मतलब ही समझ लें कि इट इज़ द प्राइस एट विच टू करेंसीज आर एक्सचेंज्ड। यानी मिसाल के तौर पे 165 रुपीज़ आर इक्वल टू $1। So this means $1 will purchase 165 Pakistani rupees in foreign exchange market, or 165 rupees will purchase $1 in interbank market or in foreign exchange market। तो ये प्राइस की जो सेटलमेंट है वो एक्सचेंज रेट है। जितना डिमांड और सप्लाई में गैप आता चला जाएगा उतना करेंसी की वैल्यू यानी एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होता चला जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो ट्रेडर्स थे हमारे पास, जो सोसाइटी का थर्ड इकोनॉमिक एजेंट था, जब वो सोसाइटी में इन्वॉल्व होंगे, जब वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आएगी। अदरवाइज मार्केट सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल यानी मनी मार्केट में फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट, गुड्स मार्केट और लेबर मार्केट रहेगी। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इनएक्टिव रहेगी। लेकिन जैसे ही ट्रेडर्स आ जाएंगे तो इंटरनेशनल और नेशनल करेंसीज जब इन्वॉल्व हो जाएंगी तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ जाएंगी। आपने पिछले दिनों देखा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क इन्वॉल्व हो गया था, और जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डॉलर एप्रिशिएट होगा, यानी उसकी वैल्यू में इजाफा होगा, डॉलर महंगा होगा। तो लोगों ने बजाय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विसेज सेक्टर में पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट करने के, उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिया और ये एक्सपेक्ट किया कि डॉलर जब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब महंगा होगा तो हम उसको सेल कर देंगे। तो उससे नतीजा क्या निकला कि सोसाइटी में एक ट्रेंड बिल्डअप हो गया। जैसे ही ट्रेंड बिल्डअप हुआ तो डॉलर की बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से, और जो वो डिमांड लोकल डिमांड थी, वो कोई इंटरनेशनल डिमांड नहीं थी, तो डॉलर की उस लोकल डिमांड की वजह से डॉलर मज़ीद महंगा 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 होना शुरू हो गया। उसमें हमारे अपने लोकल इन्वेस्टर्स जो थे वो कसूरवार थे, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो इसे कहते हैं स्पेकुलेशन ऑन करेंसीज। ठीक, तो ये भी एक बड़ी सिग्निफिकेंट मार्केट हमारे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा अगर रिकॉल करवाऊँ जो हमारी अभी तक की गुफ्तगू हुई है, उसमें हमने अभी तक ये डिस्कस किया था दैट इकोनॉमी इज़ द इनएक्सोरेबल नेक्सस अमंग इकोनॉमिक एजेंट, स्ट्रक्चरल सेक्टर्स एंड फंडामेंटल मार्केट्स। तो ये तीनों जो डेफिनेशन के एस्पेक्ट थे उन्हें हमने ऑलमोस्ट लेक्चर 4 में हमने उन्हें कंक्लूड किया है। अब हम जानते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स कौन हैं, सेक्टर्स क्या हैं और मार्केट्स किस तरह से हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इन तीनों पॉइंट को इंटर रिलेट करेंगे। अभी तक जो हमने गुफ्तगू की है उसमें इकानमी को, यानी इन 3 पिवट पॉइंट को हमने सेपरेटली, आइसोलेटली और इंडिपेंडेंटली डिस्कस किया है। लेक्चर 5 में इंशाल्लाह हम इनको इंटर रिलेट कर देंगे। उस इंटर रिलेशन से हम ये देखेंगे कि
नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ किस तरह से मूव करती हैं। फिर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं जो अडॉप्ट की जाती हैं इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए। तो वो तो हम इंशाल्लाह लेक्चर 5 में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो अभी तक हमने इकोनॉमी को डिस्कस किया है इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यानी इस इकोनॉमी की डेफिनेशन को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसे 3 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी इसमें सिर्फ 3 इकोनॉमिक एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लाइक कंज्यूमर्स C, प्रोड्यूसर्स I एंड गवर्नमेंट G। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ये 3 लोग, ये 3 इकोनॉमिक एजेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, मनी मार्केट सिवाय फॉरेक्स मार्केट के, गुड्स मार्केट और लेबर मार्केट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज के अंदर रहते हुए ब्रॉडली स्पीकिंग, उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे। और ओपन इकोनॉमी, इसे 4 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, यानी इसके अंदर चारों के चारों सेक्टर साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हैं, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड एनेक्स विच इज ट्रेडर्स। इसमें सारे सेक्टर्स हैं, सारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, सारे स्ट्रक्चरल सेक्टर्स हैं और सारी फंडामेंटल मार्केट हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो नोट में आपको नजर आ रहा है दी होल वर्ल्ड इज वर्किंग अंडर ओपन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, यानी पूरी दुनिया अब ग्लोबलाइजेशन पे है, पूरी दुनिया ओवरसीज जो है वो ट्रेडिंग कर रही है। और ट्रेडिंग मिसाल के तौर पे जो कंट्री जिसमें ब्लेस्ड है, जिसमें वो एंडोड है, जिसमें वो एफिशिएंट है, ये जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं वो उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है और दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। और जिनमें वो लेस एफिशिएंट है, जिसमें वो लेस इफ़ेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, या जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल नहीं है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को वो इंपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे चल रही है। और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक इंस्टीट्यूट को सेटअप किया हुआ है, जिसका मकसद ट्रेड ओपननेस को प्रमोट करना है, यानी ट्रेड को प्रोपोगेट करना है, ट्रेड के कॉन्सेप्ट को प्रोपोगेट करना है कि ट्रेड जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए हर लिहाज से बेनिफिशियल है, सिवाय उन कंट्रीज़ के जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड नेशंस ने बैन किया हुआ है, लाइक नॉर्थ कोरिया, अफ़गानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड वेनेजुएला। तो सिवाय इन कंट्रीज़ के जिन पे ट्रेड सैंक्शंस हैं या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर मूव कर रही है। बाकी सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी, यानी पूरी इकोनॉमी के इंटरकनेक्शन को जिस पॉइंट पे मैं आपको लाना चाहता था, उसे हम हरफ आखिर के तौर पे लेक्चर 5 में डिस्कस करेंगे। सो टिल नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।